رانو چڑیا ایک پیڑ پر اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ طوطا رانو چڑیا کے پاس آتا ہے۔ رانو چڑیا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ طوطے بھیا، سردیاں آنے والی ہیں، مجھے اپنے لیے پکا گھر بنانا ہے، مگر میرے پاس نہ تو کوئی کام ہے اور نہ ہی پیسے۔ میرے انڈوں سے بچے بھی نکل آئیں گے، وہ اتنی سردی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بات تو سچ میں پریشانی کی ہے۔ رانو چڑیا، اگر میری پتنی ہریالی اتنے غصے والی نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا۔ میں جانتی ہوں طوطے بھیا، مگر آپ کے گھر بھی میں کب تک رہ سکتی ہوں؟ آخر مجھے اپنا گھر بنانا ہی پڑے گا۔ ہریالی بہن کا تو میں جانتی ہوں۔ طوطے بھیا، کیا آپ مجھے اس جنگل کے خفیہ راستے کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں خزانہ ہے؟ رانو چڑیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنگل کی اس طرف تو کبھی کوئی نہیں گیا، اور جو گیا وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، آپ بس مجھے وہ راستہ بتا دیں۔ وہ راستہ تو فاختہ بی کو ہی پتہ ہے، تو چلیں فاختہ بی کے پاس جاتے ہیں۔ طوطا اور رانو چڑیا فاختہ بی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ رانو چڑیا، یہ لو بیٹی، یہ ہے نقشہ۔ میں جانتی ہوں تم عقل مند اور بہادر ہو، تم وہ خزانہ ضرور تلاش کر لو گی، اور ایک ماں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ماں جی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں اب چلتی ہوں، چلے طوطے بھیا۔ رانو چڑیا اور طوطا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ طوطے بھیا، کیا آپ بھی خزانہ لینے میرے ساتھ جانا چاہیں گے؟ ہاں رانو چڑیا، ہو سکتا ہے میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ آپ بہت اچھے ہیں، جو بھی خزانہ ملا وہ ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ رانو چڑیا پہلے اپنے گھونسلے میں جاتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، مما جلد لوٹ آئے گی، تم ڈرنا مت، میں تمہیں گوری آنٹی کے گھر چھوڑ آتی۔ رانو چڑیا اپنے انڈے اٹھاتی ہے اور کووں کے گھر جاتی ہے۔ گوری بہن، ایک دن کے لیے میرے انڈوں کا خیال رکھنا، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ رانو، تم جا کہاں رہی ہو؟ خزانے کی تلاش میں۔ کیا؟ خزانے کی تلاش میں؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ وہاں جو پکشی بھی گیا آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ لیکن میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کے لیے لوٹ کر بھی آؤں گی۔ کالو جی، ذرا بات سننا۔ گوری کالو کوے کو ایک طرف لے جاتی ہے۔ کالو جی، کیوں نہ آپ بھی اس رانو کے ساتھ چلے جاؤ؟ اگر سچ میں خزانہ مل گیا تو ہمارے تو دن بدل جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی… کالو جی، آپ رانو چڑیا کے پیچھے پیچھے رہنا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بھاگ آنا۔ سوچو، اگر دولت مل گئی تو… کالو کوا بھی امیر بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے اور مان جاتا ہے۔ گوری بہن، میں جا رہی ہوں، آپ میرے انڈوں کا خیال رکھنا۔ ہاں ہاں رانو، تم بالکل بھی چنتا مت کرنا، میں ان انڈوں کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ رانو چڑیا جانے لگتی ہے تو کالو کوا اسے کہتا ہے، رانو رکو، تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، آپ بھی آ جائیں۔ کالو کوا بھی رانو چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے، طوطا بھی آ جاتا ہے، اور وہ سب دوسرے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ وہ اڑتے ہیں اور نقشے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے خطرناک جھیلیں ہیں، ہمیں بہت احتیاط سے جانا ہوگا۔ ان کی نظر دوسری طرف ہے۔ ہاں، چلو جلدی۔ وہ سب جھیلوں سے بچتے ہوئے وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ خزانہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ دیکھیں، اس طرف کچھ ہے، اس پیڑ کے پیچھے کھوکھر میں۔ ہاں، کچھ تو ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، وہاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلیاں تھیں۔ سونا؟ اتنے سارے سونے کے سکے، وہ بھی ایک ساتھ؟ طوطا اور کالو کوا جلدی جلدی سے وہ تھیلیاں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ میں نے پہلے اٹھائی ہے، اس لیے یہ میری ہوئی، اور یہ میری ہوئی۔ اور میں کیا رکھوں؟ وہ دیکھو، وہ سامنے بیج پڑا ہے، تم وہ رکھ لو۔
तोता और कौवा रानो चिड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं। मैंने सुना था दौलत पैसा देखकर अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं, और आज देख भी लिया। तोता और कालू कौवा जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। रानो चिड़िया वो बीज उठा लेती है और वो सब वापस उड़ते हैं। वाह भाई वाह, चालाकी, और वो भी हमसे। कुछ भी है निकाल दो वरना जान से जाओगे। चील चील, मुझे कुछ मत कहना। ये लो, ये सोना तुम रख लो। तोता और कालू कौवा मजबूर होकर वो सोना चीलों को दे देते हैं। वो चीलें उन्हें मारने लगती हैं। सब कुछ तो दे दिया, अब क्यों मार रही हो हमें? अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो हमारा खौफ पक्षियों के दिलों में कम हो जाएगा। दोबारा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी सब देख रही थी। चीलें वहाँ से चली जाती हैं। रानो चिड़िया वहाँ आती है, उनकी तरफ देखकर कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। हमने गलत किया, बहुत गलत किया। रानो चिड़िया वो बीज लाकर अपने आंगन में बो देती है और पानी डालती है। कुछ तो उगाएगा, अगर कोई फल हुआ तो फल बेचकर गुजारा तो हो जाएगा। रानो चिड़िया अगले दिन जब अपने आंगन में आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। उसके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था जो हीरों से भरा हुआ था। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वाह ऊपर वाले, तेरा न्याय, जिसे मैं मामूली बीज समझ रही थी, वही सबसे बड़ा खजाना निकला। फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर बनाती है। रानो चिड़िया के अंडों से खूबसूरत बच्चे भी निकल आए थे। रानो चिड़िया ठंडी के दिन आराम से गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा छोटा सा था जब उसके पिता को कुछ उल्लुओं ने मार दिया था। तब से लेकर अब तक कालू कौवे का पालन पोषण उसकी माँ ने अकेले ही किया था। कालू कौवे की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, मगर कालू कौवा एक नंबर का हरामी था। वह अपनी माँ को हमेशा तंग करता, ना कहना मानता और ना ही कोई काम करता था। कालू बेटा उठ जाओ, कल से सोए हुए हो, जाओ और मुझे मंडी से आलू ला दो। माँ, कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो, हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ कालू कौवा उठता है और अपनी माँ से पैसे लेकर आलू लेने चला जाता है। आलू तो क्या लेने थे, वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर जी, 1 दर्जन समोसे लगा दो। 1 दर्जन? कालू, इतने पैसे हैं भी तुम्हारे पास? जो कहा है वो करो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से पेट भर के समोसे खाता है और फिर मिठाई। कुछ ज्यादा खा लेने से कालू कौवे को नींद आने लगती है। वह नदी के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा सो जाता है और उसकी माँ शाम तक अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देखती रहती है। चिड़िया, मेरे बेटे कालू को कहीं देखा है? माँ जी, वह नदी के पास सोया हुआ है। वो फिर सो गया? बेटी, मेरा एक काम करो, वापस जाते हुए उसे जगा देना। उसे कहना कि उसकी माँ उसे बुला रही है। चिड़िया जब घर जाती है तो वापसी पर कालू कौवे को जगा देती है। कालू, कालू उठो, उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी जाओ घर। मेरी माँ तो पागल है, जाओ चिड़िया तुम यहाँ से, सारी नींद खराब कर दी मेरी। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। शाम के बाद कालू कौवा घर चला जाता है। कालू बेटा, आलू कहाँ है? कालू कौवा तो भूल ही गया था कि वो तो घर से आलू लेने गया था, इसलिए वो अपनी माँ से हर रोज की तरह एक नया झूठ बोलता है। माँ, जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही गरीब पक्षी मिल गया।
मैंने वो पैसे उसे दे दिए। अच्छा किया ना माँ मैंने। अब मैं क्या सब्जी बनाऊंगी, घर में कुछ भी नहीं है। रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं है। कौवे की माँ अब बूढ़ी हो गई थी। वो तो कोई कामकाज कर नहीं सकती थी और उसका जवान बेटा बहुत आलसी था। एक दिन माही चील कालू की माँ के पास आती है। बहन, मेरे बेटे की शादी है, आप ज़रूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। चील बहन, सच बताऊं तो मेरे पास ना ढंग के कपड़े हैं और ना जूता। शादी पर आऊंगी, कुछ पैसे तो लगेंगे ही। मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमाता, इसलिए मैं आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। सब पक्षी चील के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे। माँ जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको चील ने अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया क्या? चिड़िया बेटी, मैं कैसे जाती? मेरे पास क्या है, ना पैसे और ना ही कुछ और। एक ही बेटा है, वो कोई काम करता ही नहीं। कौवे को इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी ना होती कि वो अपनी बूढ़ी माँ की कोई भी खुशी पूरी नहीं करता। माँ, चील मौसी के बेटे की शादी पर अच्छा भोजन मिलेगा, चलो माँ चलें। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। भोजन खाने की तो चिंता है, ये नहीं पता कि जाते हुए कुछ लेकर भी जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर तोता बैठा रो रहा था। माँ, तू मुझे छोड़कर चली गई। माँ, अब तेरे बेटे के पास सब कुछ है, घर है, पैसे हैं, सब है, मगर माँ अब तू नहीं है। अगर तू होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। कौवा ये सुनकर तोते के पास आता है। यार तोते, तू माँ के लिए रो रहा है क्या? हाँ कौवे, मेरी माँ नहीं है। तोते, मेरी माँ है, मगर मुझे माँ की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझसे मेरी माँ ले लो। माँ ले लूं? कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगा तुझे। मुझे कुछ पैसे दो और मेरी माँ तुम ले लो। तुम्हें माँ मिल जाएगी और मुझे पैसे, दोनों का काम बन जाएगा। तोता मान जाता है और वो कुछ पैसे कालू कौवे को दे देता है और कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। अच्छा, मगर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, माँ तू चल मेरे साथ। फिर कालू कौवा अपनी माँ को तोते के घर ले जाता है। लो तोते, मेरी माँ तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले बेटे? मगर कालू अपनी माँ की बात सुने बिना ही चला जाता है। माँ जी, शांत हो जाए। क्या आपको आपके बेटे ने बताया नहीं है कि वो आपको मुझे बेच गया है? ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है। हाँ माँ, मैं अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि कालू मेरे पास आया और कहा कि मैं उसकी माँ ले लूं। कालू बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो ना थी कि तुम अपनी माँ को ही बेच दोगे। फिर उस दिन के बाद तोता कालू कौवे की माँ को अपनी माँ समझने लगा। तोता कौवी माँ को रंग बिरंगे फल खाने को देता। माँ ये ले, ये अंगूर खाइए। माँ आप ये फल खाकर सो जाएं और रात को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। जीते रहो बेटा, बस एक बार कल मेरे कालू को मुझसे मिलवा देना। मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के बिना। एक माँ तो माँ होती है, बच्चे जैसे भी हों, मगर माँ अपने बच्चों से नफरत कैसे कर सकती है। इसलिए कालू ने जो भी किया, मगर उसकी माँ अभी तक अपने बेटे को याद कर कर के रोती थी। दूसरे दिन तोता पूरे जंगल में कालू कौवे की खोज करता है, मगर उसे कहीं भी कालू कौवा दिखाई नहीं देता। घर वापस जाते हुए तोता अपनी कौवी माँ के लिए सोने का हार लेता है। माँ देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बेटा, मेरा कालू नहीं मिला क्या? माँ, मैंने उसे हर जगह देखा, मगर वो मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिला। ठीक हो मेरा बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है।
वो माँ ना सोना चाहती थी, ना चांदी, ना फल, ना दाना। उसे तो केवल अपने बेटे कालू की ही चिंता थी, जो इतना बुरा था कि अपनी माँ को ही बेच गया था। फिर एक दिन तोता कालू कौवे को ढूंढ ही लेता है। कालू, मेरे साथ चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। वो ना सोना चाहती है, ना चांदी। मैं हर रोज तरह तरह के फल ला कर देता हूँ माँ को, मगर माँ खुश नहीं होती। वो हर समय तुझे ही पुकारती रहती है, ना रात सोती है ना दिन। मैंने माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने माँ बेच दी और माँ फिर भी मुझे ही याद करती है। ये कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरे साथ चलो कालू। फिर तोता कालू को साथ लेकर अपने घर जाता है। अपने बेटे को देखकर कालू कौवे की माँ अपने बेटे से लिपट जाती है। कालू कौवे, ये होती है माँ जो अपने बच्चों के हर गुनाह को भूल जाती है, हर गलती माफ कर देती है। कालू मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ना देना, मगर फिर कभी मुझे छोड़कर ना जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे एहसास हो गया है। फिर कालू अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।